A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of this chapter. You know very well, in the last video of class 11th accountancy, we discussed a lots of things related to the new topic of the accountancy, that is a ledger. In this chapter, first of all, we discuss the meaning of the ledger as well as the feature of the ledger, utility of a ledger, format of a ledger account, and posting the entries. You know very well, when we talking about the posting the entries, posting is the process of classifying the transaction account wise and recording them in a ledger from the journal as a subsidiary book. So you know very well, in the ledger account, first of all we prepared a journal entries, and thereafter all the accounts which are already opened in the journal, we will separately open a ledger account for each and every account already opened in the journal. So thereafter we discuss the balancing of an account. After the posting in the ledger, the next step is to determine the net effect of all transactions posted to an account. The process of determining the difference between the total of debits and total of credits appearing in an account, it is termed as the balancing of an account. The process or procedure of balancing ledger account, separately, first of all we total both the debit amount column and the credit amount column separately and ascertain the difference. If the total side of debit exceed the credit side total, so such difference amount will be posted on the credit side in credit amount column as by balance CD, and if the credit side total is more than the debit side total, put such difference on the debit side in debit column as to balance BD. And now when we bring forward the balance on the next date, if debit balance is written on the debit side as to balance BD, if credit balance, write down the credit side as a by balance BD. When we are talking about the procedure to close the various account, you know very well there are basically three types of the account: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं. इफ़ एनी पर्सनल अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस, इट मीन्स हाउ मच अमाउंट इज ओन टू ईच इंडिविजुअल, एंड इफ any personal account shows a credit balance, it indicates the amount owing to him. When we are talking about the closing of real account, the closing of real account same as the accounts of all other assets is same as that of the personal account. When balance, these ways always shows a debit balance. And when we are talking about the nominal account, the nominal account includes the account relating to the expense and income of the firm. These accounts do not require balancing, as the main purpose of the opening the nominal account is to ascertain the net profit or loss of the firm. सो बेसिकली हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, उसमें काफ़ी चीज़ें थी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पोस्टिंग सीखी कि जर्नल से लेज़र में कैसे पोस्टिंग करनी है. उसके लिए मैंने 3 जर्नल एंट्रीज़ की एग्जांपल ली थी, उससे हेल्प से हम लोगों ने लगभग 5 से 6 लेज़र अकाउंट ओपन किया था. और एक बात ये भी सीखी थी कि अगर कोई लेज़र अकाउंट एक बार में ओपन होता है तो उसे हम कोई अकाउंट जनरल में अगर कई बार ओपन होता है तो ऐसा नहीं कि लेज़र अकाउंट भी कई बार ओपन होगा, लेज़र अकाउंट भी एक ही बार ओपन होता है, जैसे कैश अकाउंट के केस में लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था. दूसरी बार जब हम सारे लेज़र अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, देयर आफ्टर वी बैलेंस दी एवरी लेज़र अकाउंट. लेकिन उसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट एंड क्रेडिट कुछ भी आ सकता है. अगर पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट आता है, इसका मतलब इट रिप्रेजेंट आवर एसेट्स, यानी हमने उसको इतना पैसा दिया है, उसे फ्यूचर में हमें वो पैसा लौटाना है. Whereas when we are talking about the credit balance of the personal account, it represents the liability of the business. And the next one is the real account. Real account के केस में real account represent the assets account. So अगर real account के कोई बैलेंस आते हैं तो जनरली वो बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है. और डेबिट बैलेंस के केस में वेरी वेल कि डेबिट की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्रेडिट की वैल्यू कम होती है. एंड नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में हम सारे इनकम्स एंड एक्सपेंस के अकाउंट को डील करते हैं और इस को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती. सो नाउ इस पूरे टॉपिक को और ब्रीफली और काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए, नाउ वी विल टेक दी वन मोर illustration, the illustration number 30.
which already shown on your screen. The illustration number 30 is generalize the following transaction, post them in ledger account and balance them. यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सारे ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री पास करनी है एंड देयर आफ्टर इन जनरल एंट्रीज की हेल्प से आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है और फिर लास्ट में उसको बैलेंस करना है. तो द क्वेश्चन इज 2015 अप्रैल 1 नरेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000. April 2 brought goods for cash rupees 30,000. April 3 opened bank account with cash rupees 40,000. April 4 sold goods for cash 30,000. April 7 bought goods from Raftar on credit 20,000. April 10 sold goods to Umesh on credit 20,000. April 15 purchased plant and machinery and payment is made by check, that is 15,000. April 19 paid to Raftar in cash 12,000. April 21 received loan from Natty and deposited the same into bank 7,000. April 23 goods returned to Raftar 2,000. And next is 21 received loan from Natty and deposited same into the bank 7,000. April 23 goods returned to Raftar 2,000. And 26 withdraw from bank for personal use 3,000. April 27 paid to Raftar by check 4,000. April 29 received cash from Umesh 12,000. And April 30 purchased stationery by cash 100. And April 30 paid wages and salary rupees 15,000. So now we have a few important journal entry reflected on your screen. So first of all we pass the journal entry from April 1 to April 30. So one by one you know very well हम लोगों ने लास्ट वीडियोज़ में जर्नल एंट्री पास करना सीखा है. सो प्लीज़ आप लोग भी हेल्प करिए और मैं भी हेल्प करता हूँ आपकी. सो फर्स्ट जर्नल एंट्री इज April 1 नरेश स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 1,50,000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,50,000. ओके, सो हम लोग पहले सॉल्यूशन भी देख लेते हैं. द फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000 एंड डेट्स में डेट कॉलम में डेट को पुट करते हैं एंड नरेशन इज बिंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1,50,000 ब्रॉट इन कैश. The next journal entry will be bought goods for cash. If you purchase a goods for cash, so the entry will be purchase account debit to cash rupees 30,000. Okay, so the solution is purchase account debit to cash 30,000 and the narration will be bring the goods purchase for cash for April 2. The next is April 3 open bank account with cash 40,000. तो you know very well हमने बैंक अकाउंट ओपन किया कैश में. तो the entry will be who's a receiver, bank is the receiver, and what goes cash. तो entry will be bank account debit to cash rupees 40,000. So the April 3rd bank account debit to cash rupees 40,000 and the narration is being the bank account opened by deposited cash into the bank for the April 3. Okay, the next one is April 4. For the April 4 sold goods for cash 30,000. if you sold the goods for cash, you know very well the cash will become. and what sold the goods, you know very well जब goods sold होता है तो सेल को क्रेडिट करते हैं. the entry will be cash account debit to sales April 4 30,000 and the narration is being the goods sold for cash. The next is for April 7 bought goods from Raftar on credit. हमने रफ्तार से गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट. तो रफ्तार इज बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म. तो लाइबिलिटी को हम लोग क्रेडिट करते हैं एंड गुड्स परचेस किया. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू रफ्तार दैट इज 20,000. सोल्ड गुड्स टू उमेश ऑन क्रेडिट. तो उमेश को हमने गुड्स सोल्ड किया. सो द एंट्री विल बी उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. यस, बिकॉज हमने गुड्स सोल्ड किया तो ही बिकम्स अ डेटर ऑफ द बिजनेस एंड यू नो वेरी वेल एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं. सो द एंट्री विल बी उमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. एंड वन मोर परचेज प्लांट एंड मशीनरी एंड पेमेंट इज मेड बाई चेक. तो यू नो वेरी वेल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक. यू नो वेरी वेल इफ यू पेड एनी अमाउंट बाई चेक, सो हु इज अ गिवर? द गिवर इज बैंक. सो इन दिस सिचुएशन बैंक should be accredited and what comes plant and machinery will become. So the entry will be plant and machinery account debit to bank. The amount will be 15,000. So you can see that in the solution when we took the three transaction in the solution. The April 7 purchase account debit to Raftar, for April 10 Umesh to sales 20,000 and for 15 April plant and machinery account debit to bank, that is 15,000. Okay, so now we will move to the for the April 19. April 19 is the transaction paid to Raftar in cash. April 19 में paid to Raftar in cash, so that is 12,000. तो अगर हम रफ्तार को कैश में तो रफ्तार अकाउंट डेबिट टू कैश. हु इज अ रिसीवर? रफ्तार इज अ रिसीवर, सो द रफ्तार अकाउंट डेबिट टू कैश. Okay, the next one is April 21
receive loan from NATI and deposited the same into the bank. हमने लोन लिया फ्रॉम द नेटीज और उस बैंक को पैसे को कहाँ जमा कर दिया, बैंक्स में. सो लोन नेटी से लिया, हुज अ गिवर, नेटीज. तो नेटीज लोन अकाउंट इज अ लाइबिलिटी, सो इट इज विल बी क्रेडिटेड. एंड हुज अ रिसीवर, द एंटायर मनी डिपॉजिटेड टू द बैंक अकाउंट, सो द हुज अ रिसीवर बैंक, सो द बैंक अकाउंट डेबिट टू नेटीज लोन अकाउंट फॉर द 7,000. एंड गुड्स रिटर्न टू रफ्तार, तो यू नो वेरी वेल गुड्स रिटर्न टू रफ्तार, तो हुज अ रिसीवर, रफ्तार इज द रिसीवर, रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं. तो रफ्तार अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, दैट इज अ 2,000. ओके, so you can see in this solution, the first one is Raftar account debit to cash for April 19 for the payment of the amount to the Raftar, and for April 21 bank account debit to Netis loan, because we take a loan from the Netis and all the amount will be deposited into the bank, that is 7,000. And for April 23 Raftar account debit to purchase return, you know very well purchase return को हम लोग कौन नाम से जानते हैं, that is return outward, and for the sales return, return inward. Okay, so the amount will be 2,000. So the April 26, now we will move to the transaction to the April 26. April 26 को क्या transaction था, withdraw from bank for personal use. If we withdraw some money from the bank for personal use, you know very well, the entry will be drawing account debit to bank, because who's a giver, bank is a giver, and drawing is an expense for the business, so drawing account debit to debit, that is amount will be 3,000. Paid Raftar by check, so when we paid any amount to the Raftar by check, so the Raftar is a receiver, so Raftar account debit to bank. And receive a cash from Umesh, the cash account debit to Umesh. And paid stationery by cash, so the entry will be stationery account debit to cash. Yes, because we purchased the stationery. And paid wages and salary. If we paid the wages and salary, so it is an expense, so the wages and salary account debit to cash. Okay, now you can see that we solve all the journal entry in our books of account. First of all, we match all the things as I say. So for April 26, a drawing account debit to bank 3,000. For April 27, the entry will be Raftar account debit to bank, because we paid the amount to Raftar by check, so who's a giver, bank is a giver. And for April 29, we receive a cash from the Umesh, so the entry will be Umesh account debit to cash account debit to Umesh, that is the 12,000. And for April 30, that is when we purchase the stationery, so the entry will be stationery account debit to cash for 100. And for April 30, wages and salary account debit to cash, that is 15,000. And the total of the journal is 3,60,100. So first of all, we passed all the journal entry from the April 1 to April 30, यानी April 1 से लेकर April 30 तक की हम लोगों ने सारी journal entry पास कर दी, each and every journal entries. And thereafter we will move to the ledger. So before moving to the ledger account, first of all we determine which types of account are opened in the ledger account. यानी लेजर अकाउंट में कितने अकाउंट ओपन होंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करना बहुत ज़रूरी है. शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये आपको माइंड में रखना है कि ऑल द अकाउंट्स विच आर ओपन इन द जनरल, उनको हम लोग ओपन करेंगे, उनके पहले एक जगह नाम लिख लेंगे. एंड देयर आफ्टर द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि एनी अकाउंट विच आर ओपन इन द जनरल फॉर मोर देन 1 टाइम्स. तो इन दिस सिचुएशन ऐसा नहीं लेजर अकाउंट बार बार बनेगा. जैसे इस पूरे ट्रांजेक्शन में आप देखो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा April 30 में कैश 2 बार क्रेडिट हुआ है. इन द April 30 स्टेशनरी टू कैश, फॉर April 30 अगेन वेजेस एंड सैलरी टू कैश. तो ऐसा नहीं है कि कैश अकाउंट आप 2 बार बनाओगे, कैश अकाउंट एक ही बार बनेगा. इट मीन्स द 2 important things related to the opening of the ledger account. The first one things is all the account which are opened in the general should be written down कि कौन सा अकाउंट ओपन होगा विद द हेल्प ऑफ द जनरल, यानी जनरल में जितने अकाउंट्स ओपन हुए हैं उन सब के हेल्प से करना है. दूसरी बात, एनी अकाउंट विच आर ओपन इन द जनरल फॉर मोर देन 1 टाइम्स, फॉर मोर देन 2 टाइम्स. सो इन दिस सिचुएशन 2 or more than 2 टाइम्स. सो इन दिस सिचुएशन दिस अकाउंट इज ओपन फॉर द 1 टाइम इन द लेजर अकाउंट, यानी वो अकाउंट लेजर में एक ही बार ओपन होगा. So first of all, before the preparation of the ledger account, first of all we shortlist. First of all, we write down all the accounts which are opened in the general. Okay, so let's we start with the help of the journal entry. As you see in your solution, the first transaction is a cash account debit to capital account. So you can see that in this situation, the first of all we opened a cash account
Okay, please note down in your copy. First of all, we opened a cash account. Second, we opened a capital account. And third one is a purchase account. एंड अगेन ओपन अ कैश अकाउंट. तो कैश अकाउंट फिर से ओपन नहीं हुआ, कैश अकाउंट ऑलरेडी पहले ओपन हो चुका है. यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी शॉर्ट लिस्ट ऑल द अकाउंट्स. हम लोग को सबसे पहले जितने अकाउंट्स ओपन करने हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करना है. तो कैश अकाउंट ऑलरेडी एक बार ओपन हो चुका है, एक बार हम बनाएंगे ही इसको, तो वही तरीका हमें बार बार फॉलो करना है. ओके, सो हम लोगों ने इस 3 ट्रांजेक्शन की हेल्प से ये देखा कि हमें बेसिकली कौन कौन से अकाउंट ओपन करने हैं. कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड परचेस अकाउंट. Again, we will move to the bank account debit to cash. So in this situation, again we prepare a bank account. कैश अकाउंट ऑलरेडी पहले से हमने ओपन किया. तो कितने अकाउंट के मैंने पहले आपको नाम लिखवा दिया, आप लोग पहले इस नाम को लिखते चलिए कॉपी में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन अ कैश अकाउंट, सेकेंड कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज़ अ परचेज अकाउंट, नेक्स्ट इज़ अ बैंक अकाउंट. और जो अकाउंट एक बार ज़्यादा ओपन हो चुका है उसको फिर से नहीं खोलना है. कैश अकाउंट हो चुका है, फिर कैश अकाउंट आया हो चुका है, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट ऑलरेडी पहले से ओपन हो चुका है, एंड रफ्तार अकाउंट जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो सारे अकाउंट्स आपको ओपन करने हैं. नेक्स्ट उमेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है, अप्रैल 4 में आप देखेंगे. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बैंक अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है. उमेश अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, रफ्तार अकाउंट. रफ्तार अकाउंट पहले भी ओपन हो चुका है, यू कैन सी डैट इन द रफ्तार अकाउंट ओपन हो चुका है, यस, इन दिस सिचुएशन. सो रफ्तार अकाउंट फिर से ओपन नहीं होगा, कैश अकाउंट भी नहीं होगा. बैंक अकाउंट एंड नेटीज लोन अकाउंट, तो बैंक अकाउंट ऑलरेडी पहले से मैंने राइट डाउन करा लिया है आपको. नेटीज लोन अकाउंट ओपन होगा. ओके, एंड रफ्तार अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है. रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, रफ्तार अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है. उमेश अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है. स्टेशनरी अकाउंट न्यू एंड वेजेस एंड सैलरी अकाउंट. कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है. सो बेसिकली इफ यू फाइंड दैट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द लेजर अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शॉर्ट लिस्ट ऑल द अकाउंट्स विच आर ओपन इन द जनरल. यानी जनरल में जो अकाउंट्स मैंने ओपन किया गया है उसको हम लोग ओपन करेंगे. सो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, लेजर अकाउंट की लिस्ट बनाई कि हाउ मेनी लेजर अकाउंट आर ओपन इन द लेजर. So you can see in the solution, first of all we prepared a cash account, one time capital account, purchase account, bank account, sales account, raftar account, umesh account, plant and machinery account, Manattees loan account, return outward account, drawing account, stationery account, wages and salaries account. So you can see that all these account which are open for the one time. जैसे आपने देखा था कैश अकाउंट कितनी बार ट्रांजेक्शन में आया था. जनरल एंट्री जब हम लोगों ने पास किया तो कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द अकाउंट विच आर ऑलरेडी ओपन फॉर 2 और मोर देन 2 टाइम्स. कैश अकाउंट तो कितनी बार आया था, लेकिन हमने उसके लिए एक ही अकाउंट बनाया ना. ऐसा तो नहीं है कि कैश अकाउंट 5 बार 6 बार बनाओ. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे अकाउंट्स को तो हम लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें कोई अकाउंट एक ही बार ओपन करना है, चाहे वो जनरल में कई बार ओपन क्यों ना हो. सो यू हैव अ ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री. अब जनरल एंट्री की हेल्प से आपको लेजर अकाउंट बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन अ कैश अकाउंट. यू नो, सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट ओपन करेंगे. कैश अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द कैश. So first of all we prepared the format of the cash account. The format is the date particular J, general folio rupees, date particular J of rupees. The two side, debit side and credit side. So you know very well in the cash account, first of all we prepared the account date particular general folio rupees and date particular general folio rupees. यानी first of all हमने format बना लिया and thereafter we write down वन बाई वन कि कैश अकाउंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा लेजर पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट ऑन अप्रैल 1, 2015 द फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. सो यू नो वेरी वेल इन दिस सिचुएशन कैश डेबिट हुआ है, सो कैश के डेबिट में जाकर क्या लिख देंगे, टू कैपिटल. अमाउंट विल बी 1,50,000. एंड फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन अप्रैल टू परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. तो इन दिस सिचुएशन कैश क्रेडिट हुआ है तो बाई परचेज इन क्रेडिट साइड एंड अमाउंट विल बी 30. एंड डेट यू नो वेरी वेल, द फॉर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 1 एंड फॉर द सेकेंड ट्रांजेक्शन अप्रैल 2. प्लीज़ एनालाइज ऑल दिस पोस्टिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ डिस्कशन उसके बाद हम लोगों ने कैश अकाउंट बनाना सीखेंगे. सो इन द थर्ड
द थर्ड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे भी फिर कैश होगा, तो उसी सेम कैश अकाउंट में फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कैश के क्रेडिट में जाएंगे एंड वी राइट डाउन दी बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 40,000. Okay, now for April 4, cash account debit to sales, again cash account debit to sales. So in this situation कैश डेबिट हुआ है तो कैश के डेबिट में जाकर क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, द अमाउंट विल बी 30,000. एंड फॉर अप्रैल 7 कैश का कोई नाम नहीं है, छोड़ देंगे. अप्रैल 10 उमेश टू सेल्स, कैश का नाम नहीं है, छोड़ देंगे. अप्रैल 15 प्लांट एंड मशीन टू बैंक, कैश का नाम नहीं है, इग्नोर कर देंगे. फॉर अप्रैल 19 रफ्तार अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें आप देख रहोगे रफ्तार अकाउंट डेबिट टू कैश है तो कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट साइड में जाकर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई रफ्तार, amount will be 12,000. Okay, the next one is अप्रैल 21. अप्रैल 21 को भी कोई कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है. अप्रैल 23 को भी कोई कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है. अप्रैल 26 को भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है. अप्रैल 27 में भी नहीं है. अप्रैल 29 कैश अकाउंट डेबिट टू उमेश, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, सो उमेश को जाकर हम लोग टू साइड में यानी डेबिट साइड में राइट डाउन करेंगे. द एंट्री विल बी कैश के डेबिट में टू उमेश and amount will be 12,000. So please watch carefully and listen carefully. For April 30 की दोनों ट्रांजेक्शन में कैश क्रेडिट है by to cash. So in this situation first of all we write down the buy stationery 100 and buy wages and salary 15,000. So आप लोगों ने देखा हम लोगों ने क्या किया, जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स थे, कैश जिस साइड हुआ है, जैसे कैश डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में पोस्टिंग की गई है, और कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो कैश के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की है. पोस्टिंग करते समय ये ध्यान रखा गया है कि हमें उसके अपोजिट साइड के नाम को पर्टिकुलर्स में राइट डाउन करना है. जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है तो कैश डेबिट में, तो कैश के डेबिट में जाकर अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल, तो कैपिटल को राइट डाउन करना है. तो यू कैन सी दैट इन द सॉल्यूशन. For April 1, 2015 to capital 1,50,000. For April 2 buy bank 30,000. For April 4 2 sales 30,000. For April 3 Raftar 40,000. And for April 19 buy stationery 12,000. And next one is a बाई अप्रैल 1 मिनट दिस इसमें कुछ गड़बड़ी है इस कैश अकाउंट में. सो फिर वन मोर थिंग्स, फॉर अप्रैल 2 परचेज हमने किया था, फॉर अप्रैल 2 की वैल्यू कितनी थी, 30,000. सो इस सॉल्यूशन में आप ये देख रहे होंगे इलस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं. वो मिस्टेक्स ये कि 30,000 की वैल्यू को इग्नोर कर दिया गया है, उसको राइट डाउन नहीं किया गया है. सो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि देखिए 1 by 1 वंस अगेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द कैश अकाउंट. सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे. Date particular general fully rupees, date particular general fully rupees, and thereafter first of all the transaction is April 1 2015 to capital 1,50,000. For April 2 buy purchase the amount will be 30,000. थोड़ा सा illustration के टाइपिंग में प्रॉब्लम आई है. For April 3 buy bank जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था 40,000. For April 19 से पहले आएगा April 4 2 sales 30,000. For April 19 that is a 12,000 stationery. Next one is April 30 that is a wages and stationery, that amount is 100, and up again wages and salary that is 15,000. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैश अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, और जब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था किस अकाउंट का किस साइड इफेक्ट पड़ेगा, उस अकाउंट में गए और उस अकाउंट में उसके इफेक्ट को एडजस्ट किया. 1 by 1 एक बार फिर से मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ इस पूरे टॉपिक को, तो और क्लियर हो जाएगा. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द कैश अकाउंट, एंड देयर आफ्टर April 1 to capital 1,50,000. For April 2 buy purchase 30,000. Next buy April 3 buy bank 40,000. April 4 2 sales 30,000.
नेक्स्ट अप्रैल 19 बाई रफ्तार 12,000. नेक्स्ट अप्रैल 29 टू उमेश 12,000. अप्रैल 30 बाई स्टेशनरी 100. अगेन अप्रैल 30 बाई वेजेस एंड सैलरी 15,000. एंड नाउ यू नो वेरी वेल कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट. तो रियल अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं, डेबिट ऐड करते हैं और क्रेडिट को बैलेंस करते हैं. तो डेबिट और क्रेडिट को ऐड करने के बाद आफ्टर द इसमें हम लोग करेंगे क्या कि 1,50,000, 30,000 एंड 12,000 को ऐड करेंगे तो आएगा 1,92,000. यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन इन तीनों को ऐड किया 1,92,000 आया. अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से लेकर फ्रॉम द 30,000 टू द 15,000 हम इसको ऐड करेंगे. 13,000, 40,000, 70,000, 70,000, 12,000, 82,000, 82,000 and 15,000, 97,000 and 90,000 plus 100, that is 97,100. So the debit total is 1,94,200 and 97,000, that is 97,100. So in this situation you find that कि हम लोगों ने डेबिट में टोटल किया 1,92,000 एंड क्रेडिट में टोटल आया 97,100. सो इन दिस सिचुएशन यू फाइंड द डिफरेंस 900, 7 एंड 9. सो यू कैन सी दैन दिस क्वेश्चन कि डेबिट का टोटल आया 1,92,000 एंड क्रेडिट का टोटल आया 97,100. सो यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द कैश अकाउंट दैट इज़ 94,900. तो बैलेंस कितना है 94,900. सो यू कैन सी दैट जो भी बैलेंस आता है जिस साइड कम पड़ता है उसे हम लोग लिख देते हैं फॉर द एट द एंड ऑफ द मंथ दैट इज अप्रैल 30 बाई बैलेंस सी डी 94,900. एंड देयर आफ्टर एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा. तो मई को हम इसी बैलेंस को हम लोग एज अ ओपनिंग टू बैलेंस पी डी लिख कर 94,900 कर देंगे. सो इस प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि वैल्यू को ऊपर नीचे कर दिया था बाई मिस्टेकली. सो प्लीज़ इस चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा. ओके, so now we will move to the next account. After the preparation of the cash account, now we will move to the capital account. You know, first of all we prepared the cash account and thereafter we prepared the capital account. तो you can see that in the capital account एक ही बार क्रिएट हुआ है. ऑल जितने भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं फ्रॉम द 1st अप्रैल टू द अप्रैल 30 कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. सो इन दिस सिचुएशन we post the journal entry by cash as a 1,50,000 क्योंकि कैपिटल अकाउंट इज क्रिएट हुआ है. तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और राइट डाउन करेंगे बाई कैश. सो यू कैन सी दैट कैश इन द क्रेडिट साइड में हम लोगों ने पोस्ट किया बाई अप्रैल 1, 2015 बाई कैश एंड देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द बैलेंस. सो द अप्रैल 30 एट द एंड ऑफ द मंथ. ये याद रखिएगा जब भी हम कोई बैलेंस करते हैं तो उसे हम एट द एंड ऑफ द मंथ में करते हैं. दैट इज़ अप्रैल 30 2015 1,50,000 एंड नाउ दिस बैलेंस विल बी ब्रॉट डाउन फॉर द नेक्स्ट मंथ. दिस इज अप्रैल 30 का नेक्स्ट मंथ क्या आएगा, मई 1, दैट इज बाई बैलेंस बी डी. डिफरेंस क्या है देखिए, यहाँ टू बैलेंस बी डी लिखा है, यहाँ बाई बैलेंस बी डी. सी डी को हम बी डी में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, सो दिस इज एन. Now once again we are preparing a next account that is a purchase account. तो you can see that पहले हमने कैश अकाउंट ओपन किया, कैपिटल कर दिया. कैश अकाउंट के जितने भी ट्रांजेक्शन थे ऑल दी ट्रांजेक्शन विल बी पोस्टेड इन द सिंगल अकाउंट विच इज़ नोन एज द कैश अकाउंट. ये ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट कई बार तो ओपन हुआ है बट उसको सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बार में एक ही अकाउंट में एडजस्ट कर दिया गया है. कैपिटल अकाउंट का सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन था, उसको हमने एडजस्ट करके उसको बैलेंस कर दिया. नेक्स्ट इज़ अ परचेज अकाउंट. तो यू नो वेरी वेल परचेज अकाउंट में देखिए आप देख रहे होगे कि परचेज डेबिट हुआ है तो पहले क्या लिखा होगा हम लोगों ने, परचेज के में जाके टू कैश 30,000 लिखा होगा. नेक्स्ट परचेज अकाउंट आया अप्रैल 7 में तो परचेज अकाउंट के डेबिट में गया और लिखा टू रफ्तार दैट इज़ 20,000. नेक्स्ट परचेज और कहाँ आया है, परचेज की वैल्यू और कहीं नहीं है, यानी सिर्फ ओनली टू ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू द परचेज. सो यू कैन सी दैट इन द परचेज अकाउंट ओनली टू ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द परचेज अकाउंट इन डेबिट साइड. तो यू कैन सी दैट इन अ परचेज अकाउंट 2015 अप्रैल 2 एंड अप्रैल 7 टू कैश 30,000, टू रफ्तार 20,000 एंड देयर आफ्टर यू नो दैट कि क्रेडिट में कुछ नहीं होता क्योंकि परचेज अकाउंट इज़ अ एक्सपेंस, इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. सो यू नो वेरी वेल कि नॉमिनल अकाउंट मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट. तो परचेज अकाउंट तो एक्सपेंस है तो परचेज तो हमेशा डेबिट ही होगा, क्रेडिट तो होगा नहीं. क्रेडिट कब होगा, परचेज रिटर्न के केस में. तो कोई एक्सेप्शनल केस भी होता था जो मैंने आपको बताया था कि इफ़ गुड्स विदड्रॉन फॉर द पर्सनल पर्पस, इफ़ गुड्स स्टोलन बाय द एम्प्लॉयज़ और गुड्स स्टोलन बाय द
वगैरह वगैरह, एंड इफ़ गुड्स लॉस बाई थेफ्ट, लॉस बाई फायर, सो इस सिचुएशन में परचेज अकाउंट क्रिएट होता है। इफ़ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैम्पल, तो वहाँ परचेज अकाउंट क्रिएट होता है। जनरली परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो यू कैन सी डैट कि इस ट्रांजेक्शन की हेल्प से आपने देखा कि परचेज अकाउंट का डेबिट में टोटल आ रहा है 50,000, क्रेडिट में कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको बैलेंस कर देंगे। तो you can see that 2015 April 30 by balance sheet, that is 50,000, and now it will be posted for the next month, brought down by 1 to balance PD 50,000. So in this question we prepared three important account, three ledger account, that is a cash account, capital account and purchase account. And in this question we have to prepare a one more account, but today we discuss only three accounts. The homework for you कि please take this question and take the screenshot of this question and prepare a journal entries, pass a journal entry himself, अपने से आप journal entry prepare करिए and thereafter posted the ledger account and make a different types of the ledger account at the end of this video. So I hope कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और स्पेशली इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने आपको सिर्फ 3 अकाउंट बनाए, तो इसका मतलब नहीं है सिर्फ 3 अकाउंट बनाना है, आपको सारे अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो आप अकाउंट प्रिपेयर करिए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडेज़ वीडियो कि प्लीज़ मेक अ लेज़र अकाउंट। जितने भी लेज़र अकाउंट प्रिपेयर हो बचे हुए हैं उनको बनाइए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम टू यू विद द सॉल्यूशन कि बाकी लेज़र अकाउंट की पोस्टिंग कैसे होगी और कैसे उसको पोस्ट करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।